Yes, tell me the answer of first. Thank you, Arihant. Riyanshi Singh, option A. तो Nandika, Rashi, they are saying option A. No, beta, the option A is the correct option. The option A is the correct option. In amoeba, binary fission takes place by the following step. So these are the correct options. First is second, then fourth, then first, and then third. Option A is the correct option. Second question. Which vegetative part is used in the propagation of bryophyllum? याद करो, मैंने तुमको ब्रायोफिल्म का पिक्चर दिखाया था. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Replies are correct. Okay, so the correct answer is leaf. Next question. Which of the following is a birth control measure? Options are here. IUCD, vasectomy, tubectomy, contraceptive pills. और उसके बाद ऑप्शंस है A, B, C and D. Good, Nandika, Veeram. The correct answer is D. All of these. ये सारे birth control measures हैं. No, Rashi, not A. Birth control measures. Next, rhizome, tuber, corm, bulb are underground dash that help in propagation. Okay, Harshit. One is IUCD, intrauterine contraceptive device. Here we are using this copper teas and other different materials for just not to fertilize the egg. Vasectomy and tubectomy are the two types of procedures, two types of small operations not to fertilize for the egg and not to fertilize with the sperm. Contraceptive pills, yes Akshar, it is made up of copper and the shape is also a T-like. T में दोनों जो T के points होते हैं, upper points, yes Veeram, नसबंधी in हिंदी. तो वो जो T points होते हैं वो दोनों T points fallopian tubes में जाके जोड़ दिए जाते हैं. और contraceptive pills तुमको पता है. चलो हाँ, इसका बताओ, इसका आंसर क्या था? Options are flower, root, leaf and stem. Yes, Khushi, it is stem. Yes, it is stem. Next, the specific scientific term for the release of ovum from ovary into body cavity. Good, good, good. Very good. Very good. Ovum from ovary into body cavity. Is it ovulation? बहुत अच्छा. Where does the fertilization occurs in mammals? Here there is no option ना, तुमको इसको बताना है एक वर्ड में और एक उसमें. No, Nandika. Fertilization occurs
हाँ, मेल में, फीमेल में ही होता है बेटा, फीमेल में ही होता है, इनसाइड द बॉडी, बट वेयर इट इज अकर। अरिहंत, यस मिली, एग्जैक्टली, अरे मिली इज एग्जैक्टली करेक्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बताना है अरे अक्षर, नहीं, यूट्रस इज नॉट करेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज इन फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट, write the technical term for the following. Funnel lying close to the ovary. Funnel line. हाँ, but नहीं अरिहंत, you are wrong. Akshat and Nandika is near about correct. Fallopian tubes divides into 3 parts. ये आपको 12th में पता चलेगा, but still I am telling you. इधर the funnel lying close to the ovary is fallopian tube is correct. The period of material repair and regeneration. The period of, yes. Menstruation, yes. Copulation chamber in the human female. Yes, menstruation cycle. Copulation chamber in the human female. Vagina, very good Millie. Millie knows the answer. Vagina is the correct answer. जहां पर copulation होता है in females, जहां सारा प्रोसेस होता है, सब कुछ, सबसे पहला एंट्री पॉइंट होता है वेजाइना. Yes. A highly convoluted narrow tube which occurs on the inner side of testis, starting from upper part and reaching up to back on the lower side. Copulation means intercourse. Akshat. नहीं बेटा, स्पर्म नहीं है, आपको बोल रहा है कॉइल्ड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्स. Harshit, 7th first answer is fallopian tube. Yes, Veeram. Akshat, that is Vasa difference. And Akshat, penis is not correct. Nandika, seminal vesicle is not correct. ठीक है? So the 8th answer is Vasa difference. नहीं अक्षत, that is wrong. वो गलत है. Which floral part is very attractive and colored? याद रखो, फ्लावर का कौन सा पार्ट बहुत अट्रैक्टिव लगता है और अलग अलग कलर्स. यस, एग्जैक्टली मिली, नंदिका, वीरम, तनुश्री. पेटल्स, पत्ती, नो पोलन ग्रेन्स नहीं, कोरोला नहीं, गलत. ये वाला आंसर तो मुझे पता है, तुमको सबको आएगा, 10th वाला. डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एंड बडिंग. कोई भी, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस लिखने हैं, बट यू कैन गिव एनी 1 डिफरेंस. बाइनरी फिजन एंड बडिंग दोनों अलग अलग है. ओके आयुष, कोरोला बोलते हैं, बट आपसे पूछ रहा है अट्रैक्टिव पार्ट्स नहीं पूछा ना कि आप उसमें कोरोला बोलोगे. नंदिका, बडिंग में द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हाँ श्रेयांश, you will get today only. In budding the chain grows, but in fission the cell divides itself. चेन नहीं ग्रो करता है बडिंग में, बड्स निकलते हैं, आपने पढ़ा है. यस वीरम,
First difference is in the second, मतलब in budding, you have a bud grown from the mother's body. Mother body से bud grow होता है और उसके बाद detach हो जाता है. हाँ, but you can use little more explanatory word. चलो, उसके बाद 11th question. Explain the regeneration as used in relation to the reproduction of organism. Describe briefly how regeneration is carried out in multicellular organism like hydra. अब हाइड्रा का पिक्चर मैंने तुमको दिखाया था, तो उसमें कैसे समझ में आया? अरिहंत, हाँ बेटा बताइए. अरिहंत, Arihant, Lumia has raised hand now. Okay, Harshit. Harshit? Yes, ma'am. The process of getting back a full organism through its body parts is called regeneration. Okay. Akshat? यस मैम. गुड मॉर्निंग मैम. मैम वो बोल रहा था कि हाइड्रा में पहले से मींस बर्ड रहता है छोटा सा, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो बॉडी से अलग हो जाता है, फिर वो नया हाइड्रा फॉर्म करता है, वो रीजनरेशन. ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से समझाया है. हाँ वीरम? ये mentioned that her word was correct. Regeneration is the process in which a full organism grow from a body part or a cell. Ma'am, these are performed by specific cell which are very fast growing and which means multiply themselves very fast. Ma'am, hydra is, I think, aquatic animal which do reproduction by regeneration. It divides into two daughter cell, then each divide again with a parental organism, and the process continues. Very good. And yes, आयुष, कुछ बोलना है बेटा? आयुष, आपने हैंड रेज किया था. ओके, ठीक है. नाउ मुझे दिखा अभी, इसलिए मैंने बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? नंदिका? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Reproduction is necessary. The species don't go extinct, so that the species remain on this planet by creating progeny. Very good. And Harshit? 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 Yes, Harshit. बोलो. Yes, ma'am. Ma'am, reproduction is necessary for the survival of species on Earth. Ma'am, and the process of reproduction also ensures the continuity of life on Earth. Very good. And the कोई बात नहीं. हर्षित, सी, इट इज ऑफ 3 marks क्वेश्चन. तो तुमने यहाँ पर 3
ओके वीरम, हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। Yes, ma'am, we will write 3 points. Firstly, that reproduction is necessary continuity of life. Secondly, the management of ecosystem. If one particular species get extinct, then it will harm the ecosystem. And thirdly, for the beneficial and survival of the species so that it may not get extinct. ठीक है, अच्छा वेट अरिहंत, मैं तुमको नेक्स्ट टाइम चांस देती हूँ। मैं अभी तुमको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12 एंड अदर क्वेश्चन ऑल्सो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में आपको डिफरेंस पता है। ये वाला जो आंसर है इसको कैसे एक्सप्लोर करना है और कैसे 3 मार्क्स में लिखना है, ये आंसर मैं तुमको दिखाती हूँ। वेट हर्षित, वेट, दिस इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो तुमने जब क्लास में एग्जाम देना है तो तुमने इस तरह से एक्सप्लेन करना है आंसर्स को। फर्स्ट इज व्हाई मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, तो मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, अगर हमें उस स्पीशीज को रोक के रखना है कि वो हमारे अर्थ से, हमारी लाइफ से एक्सटिंक्ट नहीं हो, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व इट। और इवोल्यूशन में भी वो हेल्प करता है, देन ओनली यू विल गेट द 3 मार्क्स। अब देखो, रोल इन एवोल्यूशन, सम वेरिएशंस इज प्रोड्यूस्ड इन द न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। अब इसलिए इवोल्यूशन जरूरी है क्योंकि जिराफ का जो इंसिडेंस मैंने तुमको इवोल्यूशन के समय समझाया था कि जिराफ की गर्दन इतनी बड़ी नहीं थी, धीरे धीरे वहां के जब प्लांट्स और ट्रीज ऊंचे हो गए तो हर जनरेशन में जिराफ की गर्दन बड़ी हो गई। ये था रोल ऑफ इवोल्यूशन। यस अक्षर, बाइनरी वाला आंसर आपको देखना है। दिस इज द डिफरेंस। पहला बाइनरी डिवीजन तो आपको पता है, मदर्स इनटू 2 डॉटर सेल। बडिंग, इन विच एन आउटग्रोथ कॉल्ड बड, वो पेरेंट बॉडी होता है और जो निकल जाता है दैट इज द सेकेंड, उसका बच्चा बडिंग में। The identifier of parent is completely lost as parent itself divides into 2 daughter cell. Obviously, हर मदर सेल 2 डॉटर निकालती है, फिर जब वो डॉटर बनती है माँ, फिर वो आगे फिर 2 बच्चे निकालती है, तो हर डॉटर सेल एक दिन मदर सेल बनता है। The new individual and budding develops from the parents as an extra outgrowth and the parents remain unchanged. इसमें पेरेंट एज इट इज ही रहते हैं, चेंज नहीं होते क्योंकि हर बार बडिंग से वो डिटैच हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन पॉइंट इज साइटोप्लाज्म अलोंग विथ न्यूक्लियस डिवाइड्स। ऑब्वियसली बाइनरी फिजन देखा है तुमने, और इधर साइटोप्लाज्म का कोई रोल ही नहीं है, स्मॉल बट डिटैच होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सब आ जाता है। तो एग्जाम्पल इज द 4th ऑप्शन, अमीबा एंड पैरामीशियम एंड ईस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस बाय स्टेम, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। डिस्क्राइब रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लाइटली लेते हैं, सो आई विल नॉट आस्क आंसर, नाउ आई विल शो यू द आंसर। पहले तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑल अंडरग्राउंड स्टेम्स, इवन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? आप जैसे मनी प्लांट हुआ, आपने क्या किया, मनी प्लांट का कोई भी एक हिस्सा तोड़ दिया और उसको जमीन में गाड़ दिया, दोबारा वो मनी प्लांट उग गया। तो कोई भी चीज को निकाल लो, आपने रोज प्लांट क्या किया, रोज को हम क्या करते हैं, स्टेमिंग करते हैं, यस, स्टेमिंग करके फिर लगा देते हैं। तो ये सारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रोसेस है जिसके पीछे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस उसको सॉइल अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, बट आपके पास में ये एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूट करता है कि हाउ यू विल गेट 5 मार्क्स। बस सिर्फ ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन करना नहीं। हाँ, जैस्मीन ऑल्सो अक्षर। तो ऑल अंडरग्राउंड स्टेम्स, इवन सम एरियल स्टेम्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। ये आपको पता था क्राइपर प्लांट्स क्या होता है, क्लाइंबर प्लांट्स क्या होते हैं, जो जमीन में रगड़ के चलते हैं, जो किसी सहारे से ऊपर चलते हैं। तो ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। कुछ बताया हुआ है कि एरियल स्टेम्स ऑफ शुगर केन, इम्पोमिया अपन नहीं जानते, ग्रेप वाइन वी नो, कैक्टस वी नो आर यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैक्टस का क्या, कहीं भी लगा दो, एक उसका पॉइंट तोड़ के उग जाता है। इन शुगर केन पोर्शन ऑफ द स्टेम बेयरिंग, यस, प्लांट ऑलवेज नीड होस्ट लाइक दिस, मतलब इस तरह के जितने भी प्लांट्स होंगे, वो क्रीपर्स हो, क्लाइंबर्स हो, उनको एक सहारा तो चाहिए ही होता है। तुमने नोड्स पढ़ा हुआ है, नोड्स क्या होता है, ये नोड्स होते हैं, आपने गन्ने में देखा होगा नोड्स, ये नोड्स होते हैं, उन्हीं नोड्स के पास से छोटा बड निकलता है, तो ये हर छोटे प्लांट के साथ में है। More nodes and buds are cut and planted in the soil. Adventitious root develop from the nodes and the buds grow into the aerial shoot. तो ये आपका 5 marks question with a little example by giving the diagram. पोटैटो हो सकता है, पोटैटो भी हो सकता है। अब इसके बाद और आपका प्लेनारिया, रीजनरेशन इन प्लेनारिया। यस यस, हाँ हर्षित बोलिए। Now I want to tell the answer of regeneration plenaria. Okay. अब आया आपका प्लेनारिया, ये रीजनरेशन। तुमको ये भी मैंने बताया था प्लेनारिया क्या करता है, एक जो मेन ऑर्गेनिज्म होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जब आप इस आंसर्स को लिखेंगे तब आपको ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक जो मदर बॉडी है वो कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड कैसे अलग होता है, टेल पीस कैसे अलग होता है, मिडिल पीस कैसे अलग होता है, फिर उन 3 पार्ट्स में अगेन वो रीजनरेशन होता है। मतलब ये पूरी बॉडी बनेगी, बीच वाले में ऊपर और नीचे की पूरी बॉडी बनेगी, पीछे वाले में फिर पूरी बॉडी बनेगी। तो ये जस्ट एन एग्जांपल है, आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और आपको रीजनरेशन पता ही है, व्हेन द एंटीरियर एंड ऑफ द प्लेनारिया इज कट अलोंग द लेंथ, द 2 more parts, each part develops into new head resulting in a many headed planaria। तो प्लेनारिया आपको जरूरी नहीं है कि आप इसमें 3 हेड्स बनाएं, आप एक ही हेड बना सकते हैं, इतना लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। इफ द बॉडी इज कट इनटू 3, 4 or more species, pieces, each piece regenerate the missing parts. A noteworthy observation in this case is that a piece from the middle always regenerates, a head towards its anterior side and tails its posterior side. अक्षत, बट छिपकली का पूंछ जो होता है वो टूट के गिर जाता है, वो रीजनरेट होता है, बट उसकी पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं होती है बेटा। तो रीजनरेशन में हम छिपकली का पूंछ बाकायदा पूरा लिख के बता सकते हैं कि लिजार्ड टेल कैन बी रीजनरेट बाय इट्स ओन आफ्टर फ्यू डेज फ्रॉम डिटैचिंग, बट पूरी बॉडी नहीं होती। और प्लेनारिया के केस में पूरी बॉडी का कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, सो ये आज का टेस्ट पेपर था। हाँ, ओके अक्षत, किसी को कुछ पूछना है? दिस इज टुडेज ओनली दिस मच। हाँ अक्षत बोलिए। I am showing the answer from the beginning. हाँ, vegetation in potato, ठीक है। वेजिटेशन इन पोटैटो, पोटैटो के साथ में वेजिटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है बेटा, बताती हूं मैं। मैंने आपको बोला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हाँ ठीक है, उसमें ये होता है कि आप कोई भी, वो उसी प्लांट के साथ में होता है जो डायरेक्टली स्टेम बन जाए। जैसे कि आप देखोगे, आप अगर घर पे आप लोग शायद वो नहीं खाते हो, प्याज नहीं खाते हो, लहसुन नहीं खाते हो, आलू नहीं खाते हो, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, स्टेम प्रोडक्ट्स होती हैं। आप इनको डायरेक्टली लगाओगे, ये पूरा नीचे पूरे रूट्स पे बन जाएगा। आप मनी प्लांट को देख लो, आप कैक्टस को देख लो, ये कुछ ऐसी है
ये यस यस वीरम, यस मुझे पता है आप लोग नहीं खाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप काटोगे और जमीन पे लगा दोगे, लग जाएगा। चलो सब अपने घर पे रोज तो लगा सकते हो। रोज को क्या करोगे, किसी भी एक रोज प्लांट का स्टेमिंग करो और इसको लगा लो। अच्छा खुशी, ठीक है। तो एक काम करो, तुम ना एक घर पे आलू का एक पीस ले लो, या पूरा पूरा एक आलू ले लो, पीस मत लो, पूरा एक आलू लो, पूरे एक आलू को जमीन में गाड़ दो, उसका प्रॉपर केयरिंग करोगे, तुम्हें उसमें से कुछ दिन के अंदर आलू मिलेगा। लेकिन वो आलू नीचे रूट्स में उसके ढेर सारा रहता है। एलोवेरा भी हो सकता है, बट एलोवेरा बहुत से केसेस में लगता नहीं है वीरम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? वीरम बट डिफरेंस ही आएगा 3 मार्क्स में। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डिफरेंस में ही आएंगे 3 मार्क्स में। ये देखो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू अक्षर। सेक्सुअल में क्या यूज होता है ये सबको पता है कि क्या यूज होता है, सिंगल पेरेंट, डबल पेरेंट्स, बट जब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है तो वो यूज नहीं होता। तो ये देखो, तुम इसमें कुछ कीवर्ड्स याद रखो कि इधर क्या सिंगल बर्ड इज यूज्ड, इधर हैप्लॉइड होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, सेक्स ऑर्गन जरूरत नहीं होता, सेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन की जरूरत होती है, ऑफस्प्रिंग आर जनरली सिमिलर इन पेरेंट्स, इट इज पेरेंट्स नॉट पेटेंट्स, और ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। हाँ, ये थोड़ा सा है, बट इसको इस तरह के क्वेश्चंस आ गए अगर तो तुमको याद करना पड़ेगा। अभी तो बहुत रिवीजन बाकी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय।